જાગની નો પ્રકરણ હવે જાગે જો મારા સાથજી એ છે આપન જોગા ત્રણ લીલા ચૌથી ગરતની ચારે નો યમ ભોગા કયા ન જાય સુખ જાગની ના સતઠોર ના સનેહા હવે જગબું જુગતે કરી બાજુ ભરમના બાર રંગે રાસ રમાડી તમારા સુફલ કરો અવતાર હવે દુઃખ ન દઉં પુલ પાંખડી શીતલ દૃષ્ટિ જોઉં સુખ સાગરમાં જિલાબી વિકાર સગલા દઉં આગે કલકલીને કહ્યું રે સખ્યો તોય ન ગયો બિકારા કથન સહી તમે ખાંડની બચન ખાંડા ધાર તે બચન ગણ સાલે મને કથન તમને જે કયા મારે વાસનાઓને નિંદ્રામાએ મૂલગર વિસરી ગયા હવે બિનતાએ ગાલું તમને કરું તિરસ કંચન કસનો રંગ એવો ચડાવું બેઉ પેરે કરું ધન ધન જાનું સાઠજી બદેશ આવ્યા દુઃખ દીથા કઈ ભાત તે માતે સુખાની वो में देवानी मुझे खांता खिजे बड़े वासना न जागे जग व्यानी जुगत जुई आप जाग्यानी जुगत आपू ત્યારે કેમ રહે વાસના સુઈ ખાંડી ખાડી ખીજીએ જાગે નહીં એની ભાટ આપ પૂવલ ખાવીએ શાક પુરાવીએ સાખ્યાત હવે જાગી સુખ દઉં સમારાનું કરું આપ આપની બાત સાત શ્રવમ પાસે બેસી કરું સૌ વિખ્યાત સાત શ્રવમ પાસે બેસી કરું સૌ વિખ્યાત आगे आवे सम्मुख निधनि तनो भले निदा बिजी दे निशंका निद्रा उड़ाड़ी साख्यात बैठी कीधी आगे आवे सम्मुख निधनि तनो भले निदा बिजी दीदी निशंका निद्रा उड़ाड़ी साख्यात बैठी कीधी હવે રહે બાય નહીં કિના લગા જાગની એમ જાણો અમેવ જાગ્યો ધામનો અમ માયે ભરાનો પહેલી જોગમાયા થઈ રાસમાં ત્યાંનો ત્યાંથી અજવાસા પણ આજે ઠાસે જાગની તેનો કયો ન જાય પ્રકાશ હવે અદકી ન અલગા સાત વિના મહિના રહે બાએ આલે રજે માયા ટની સાત ઉપર મેં ન સહેબાએ સાતજી આપો મના સુખ આપીશા તમને અપાર હે તે હંસશો હરખમાં તમે નાચશો નિર્ધાર મારા પ્રાણના પ્રીતમ છો અંગનાની આતમ તોલી કલપિયા મન રામત જોતા નાકું તે દુખડા ગોલી કર્મના મુકડા મનના તે તમારા હું નવ સાઉ એ દુઃખ સુખનો સ્વાદ દેશે તો એ દુઃખ હું નવ દઉં સત સુખમાં સુખ દેશે આ ભોમના દુઃખ જે તમે હંસશો હરખમાં રસ દેશે દુકડાએ હ અમે ઉપાયે આનંદ માતે રામત તો તમે માગી રામતના સુખ દઉં સાચા ચાલશું અહીં જાગી સેજલ સુખમાં રે સદા અલપ નહીં અસુખા તમે સુખનો સ્વાદ લેવાને માગી રામત દુઃખ રામત માગી દુઃખની ત્યારે કહ્યું અમે એમ દુઃખની રામત તમને દેખાડો અમે કેમ દુઃખ તો કેમે દઉં નહીં તો રામત કેમ જોવાય ખાંત કરે જોયા તની તેનો તે ઉપાય અમે રામત જાની કરતની જેમ રમું છું સદાએ અમે ઉભા જોઈશું રામત એની અદાએ વસ્તુ ગતિ દુઃખ કાંઈ નથી જો પાછી વાલો દ્રષ્ટા જો જાગી બચને તો નથી કાંઈ એ કષ્ટ લાગશે જો દુઃખને તો દુઃખ તમને લાગશે મૂળ સુખ સંભારશો તો દુઃખ પાછા ભાગશે દ્રષ્ટવાલી જો જુઓ
तो दुःख काहीँ ए नथी रामत न रङ्ग करसो आई विनोद बाटो मुख थकी सागर सुखमा झिलन्ता જ્યાં દુઃખ નહીં પ્રવેશ તે માટે તમે દુઃખ માગ્યા તે દેખાડ્યા લવલેશ પોડ્યા બેલા જાગશે વેલા રામ તજીતી સૌ એક બાટો તે કર સુંજુજાવી બીજ બીજાની વિષેક દુઃખ તમારા ન સૌ તે ચોક્કસ જાનો ચિતા એ દુઃખ તે સુખ ઘન દેશે રંગ રસ એ રામત સાતની આબો મના સુખ દેવાનો અરક અપાર રંગે રાસ રમાડીને વહેલા જાગીએ નિર્ધાર હવે લ્યો રે મારા સાતજી આપો મને જે સુખ સહી ન શકું તમ તને જે દીધા તમે દુઃખ લારે લાગે તમને મોહની તે હવે હું નવો શકું સહી ખંડની પણ નવો કરું જાણું દેવ મુખ કહી હવે કસૌટી કેમ દઉં તમને કર્મના મુખથી નવો સૌ તે માટે વચન કથન મારા બાલાઓને કેમ કહું બાલે ગ્રહીને મારું તમને જેમ લહરે આ લગે લગાર સુખ પાલમાં સુખે બેસાડી ઘેર પહોંચાડું નિર્ધાર અંગથી આપી ઉપજામું રસ પ્રેમના પ્રકાર પ્રકાશ પૂર્ણ કરી સહેજે ચાલું તે સરબ વિકાર અંગ આપ્યા વિના આવેશ પ્રેમ પ્રગટ કેમ થાય આવેશ દઈ કરું જાગની જેમ મારા અંગમાં સમાયે હવે સૌ વેલા તો ચાલીએ જો અંગમાયેથી દેવાયે જોગમાયા તો થાય તમને તો સાચવતી બતાયે હવે આવંતા દુઃખ વાસનાઓને ત્યાં આડું દઉં મારું અંગ સારે પેરે સુખ દઉં તમને માય ન કરું બચે ભંગ એ લીલા કરું એની ભાતે તો રાસ રંગ રમાયે બીજ બીજાને સુખ દઉં વિગતે બ્રહ વાસનાઓ ન ખમાયે જાગણીના સુખ દઉં તમને રાસમાય રમાડું રંગ સતતના સુખ કેમ આવે જ્યાં ન દઉં મારું અંગ અંગ આપી અંગનાને અંગના બેલું અંગ પાસ દઉં પૂરો પ્રેમનો કરું તે અવચલ રંગ અસતથી અલગા કરું સત શું કરાવું સંગ પર આત્મા શું બંધ બાંધું જેમાં પ્રલય ન થાય કહીએ ભંગ ધનીએ જગાવી મુને એકલી હું જગવું બાંધા જૂતા દુઃખની ભોમાં દૂથી ઘણી તે કરી દઉં સત સુખ સાત કરું સંસારખો તો હું જાગી પ્રમાણ જગાડી સુખ દઉં ધામના પહોંચાડું મૂલયે ધન આવે સજે ને મેં દીતા પૂરા જગમાયાની નિંદ્રા ટોએ પણ જે સુખ દિશે જાગતા પણ બિના ન જાણે કોએ પણ જે સુખ દિશે જાગતા અમ બિના ન જાણે કોએ જે જાગી બેઠા નિજ ધામમાં તેને આવેશનું શું કહીએ તારતમ તેજ પ્રકાશ પૂરન તેને સકલ બીજે સુખ લઈએ આવેશને નહીં અટકલા પણ જાગવું અતિ ભારી આવેશ જાગવું બને તાર તમે જો જુઓ જુગત વિચારી પૈયા સૌના કાંધે પ્રગટ નહીં તારતમને અટકલા આવેશ જાગવું આટ ધનીની યા અમારું ભલ તારતમના સુખ સાઠ આગલ બીજ બીજના બાલે કીધા પછી એ સુખ એ કલી ઇન્દ્રાવતીને દયા કરી ધનીએ દીધા ધન ધન ધની ધન તારતમ ધન ધન સખી જે લાવી ધન ધન સખી હું સુહાગની મુજ માએ એની દયાવી હું માટે લ્યાવ્યા ધની ધામથી બીજા કોને ન થયો એની જાણ મેં લીધું પીધું બિલાસીઓ બિસ્તરીઓ પ્રમાણ એ બાની સાથ માએ કહે બાની પણ કેને ન કીધો બિચારા પછી દયા કરીને દીધું બાલે અંગ ઇદ્રાવતીને આભાર ઘણું એ ધન લ્યાવ્યા ધની ધામથી બહુવિધના પ્રકાર તે ધન સર્વે મેં ટોલ્યું તારતમ સૌમાં સાર તારતમ બલ કોઈ ન જાણે એક જાણે મૂળ સ્વરૂપ
मूल स्वरूप न चित निपातो तारतम्य कै रूप साक्षात स्वरूप इन्द्रावती तारतम्य न अवतार वासन आशय ते बल गसे ए वचन नि विचार स्वरूप साथ नि ओल खान तारतम्य मा अज वास जोत उदत प्रगत पुराण इन्द्रावती ने पास वासना हो नि ओल खान बानी करसे तेने ताल निशंक निन्द्रा उडी जासे सावलता तत्काल एक लभ सुन रे वासना तेसँग नमुके किन मात्र ते थाए गलित गात्र अंगे प्रगत दिसे प्रेम पात्र ए बानी सावलता जे हने आवेशन आव्यो अंग ते नैने चे वासना तेनो करु जीव बेलो संग वासना जीव अनो बेहेरो एटलो जेम सूरज दृष्टि रात जीव तनु अंग सुपननु वासना अंग साख्यात बलि बेरो वासना जीवनु याना जुजबा चे थाम जीव तनु घर निन्द्रा माए वासना घर श्रीधाम नठाए नव नव लोपाए जुनु श्रीधाम एनी प्रकार कते बडे नै पत्र एके सत सदा सर्वदा सार जदि प्रसंग थयो कोही जीवनु तेनो न करु मेलो भंग ते रंगे बेलो वासना वासना सतनु अंग तारतम तेज प्रकाश पूरन इंद्रावती ने अंग ये मारो दिदु में देवाए हूँ इंद्रावती ने संग इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग जे अंग सोपे इंद्रावती ने तेने प्रेम रमाडु रंग बुद्ध तारतम बेला बने त्यहाँ पहेले पधार्या श्री राजा अंग मारे अजवास करी साथ न सारा काज दऊ सुख लऊ सुख माते जगबु साथ इंद्रावती ने उपमा मैं दीदी मारे हाथ मैं दया तमने की दी घनी जो जुओ आँखा उगाडी नै जुओ टोए जे कसो छाया निकसी ब्रह्माण्ड फाडी मुलगी आँखा डौ उगाडी जे म आडिनम आवे मोह श्रेष्ठ सत सुख ने ओल खाबु जे म गर आवे द्रष्ट तारतम नो जे तारतम अंग इंद्रावती विस्तार पया डेकाडा सारना ते पारने बलि पार ब्रह्माण्ड बने अखण्ड किदा तेमा लीला अमारी ब्रह्माण्ड त्रिजो अखण्ड करबो ये लीला अति भारी तृण लीला माया मदे अमे प्रेमे माडी जे आ लीला चौथी मानता अति अधिक जानिए एक सुख सुपना बीजा जागन्त जे मठाए पहले तृण लीला चौथी कहे सुख अधिक यनी अदाए पहलो दृष्टि जे अमने आवे हूँ तेतला ते माए अजबास ते अजबास माए अमे रमु बीजा लोक सौन नास हवे 14 लोक चारे गमा प्रकाश करूं सात जोग जीव सौ जग भिकारी तालु ते निन्द्रा रोग अमे प्रगत थैने पादरा चाल सुसौ ये घेरा बेरात बलिने ठासे सबलो एक रस एनी पेर हवे ये वचन केम प्रगत पाडु पन मारे कर भोसौ एक रस बस्त जेकाड बिना बेरात न आवे वस बेरात बस किदा बिना अखण्ड थाए केम यह अमे रामत जोई इच्छा करी माए भंग थाए केम तिह अनेक ठासे आगल आबानीनो विस्तार लवले सकाई ककौं ठावा अखण्ड आ संसार हे बानी कही में विगते ते विस्तार से विवेक मारा साधने कही में छानी पन ये चे गणु विषेक संसार सौना अंगमा मारी बुद्ध न करूं प्रवेश असत सर्वे सत करूं मारी जागनी ने आवेश बुद्ध स्वरूप अखेरनी आवे हमारे पास ब्रह्माण्ड जोग माया तनु तेने रुडे ग्रह रास मारा धनी तने चरने होती आचला ते दादा गोप वचन जे सुख जी तना ते केम करूँ लोप ब्रज रास माया मेरमु बुद्ध होती रासमा रंग
હવે આવી પ્રગતિ આઈ ઉદર મારે સંગ ઇન્દ્રાવતી બાલા સંગે ઉદર ફલ ઉત્પન્ન એક બુદ્ધ મોતી અવતારી બીજી તે જોતા તારતમ બંને સ્વરૂપ થયા પ્રગટ લઈ માઓ માએ બાટ એક તારતમ બીજી બુદ્ધ એ જોશે સન્મુખ સાઠ અક્ષર કેરી વાસના કયા છે 5 રતન કાગળ લાવ્યો મટન સુખદેવ મુનિ ધન ધન વિષ્ણુ મન રામટ લઈ ઉભો તે બને પાર ભલી ભાટ ભગવાન ભેલા સનકાદિક થમ ચાર મહાદેવજી બ્રજ લીલા ગ્રહ્યો અખંડ બ્રહ્માંડ અક્ષરચિત ચોકસ થયો એમ કાવ્ય અખંડ કબીર સાકયે પુરવા લાવે તે વચન વિશાલ પ્રગટ 5 થયા બીજા સાગર આદિ પાલ અમે બુદ્ધને પ્રકાશી કરી જાસુ અમારે ઘર વૈકુંઠ વિષ્ણુને જગા બસે બુદ્ધ દેશે સર્વે ખબર ખબર દેશે ભલી ભાંતે વિષ્ણુ જાગશે તત્કાલ આવશે આને નેત્રે નિદ્રા ત્યારે પ્રલય થશે પંપાલ છેર રામટ ઈચ્છાએ કરે અક્ષર આપો આપ એની વાસના પહોંચશે યાં લગે એ સતમંડલ સાખ્યાત વાસનાઓ 5 બોલ્યા પછી પેલી બુદ્ધ બસે કવિચાર અક્ષર આંખ ઉગાડશે ઉપજશે અરખ અપાર ત્યારે લીલા 3 તીર થશે અખંડ એની પ્રકાર નિમેષ એક ન બિસરે રુધિરે સે સ્વરૂપ નિસાર ઉત્તમ કહું બલીએ મધે જ્યાં તારતમનો વિસ્તાર વાસ્તાઓ 5 બુદ્ધે કરી શાક પુરશે સંસાર મારી સંગતે એમ સુધારી બુદ્ધ મોતી થઈ ભગવાન સત સ્વરૂપ જે અક્ષર મારે સંગ પામી થામ મારા ગુણ અંગ સૌ ઉભા થશે અરચાશે આકાર બુદ્ધ વાસન જગ વસે તેને શાક પુરશે સંસાર બુદ્ધ તારતમ લઈ કરી પસરી બૈરાતને અંગ અક્ષરને એની બીજે રૂઢે ચડ્યો અધિકો રંગ અહીં તેજના અંબાર પૂરા જોત ક્યાંય ન જલાય એને પ્રકાશે સૌ પ્રગટ કીધું જ્યાંથી ઉત્પન્ન બ્રહ્માંડ થાય જાગત બ્રહ્માંડ ઉપજે પાવો પલકે અપાર તે સર્વે અમે જોયા અહીં થકી આભાર એ લીલા છે અતિ ભલી દૃષ્ટિ ઉપજે બ્રહ્માંડ એ રમે તે રામત નિત નવી એની ઈચ્છા છે અખંડ એ મંડલ અખંડ સદા અક્ષર શ્રી ભગવાન પ્રગટ તિસે પાદરા અહીં થકી સૌ ઠામ મોહ ઉપન અહીંયા થકી જે સુન નિરાકાર ફલ મેલી બ્રહ્માંડ કીધો કારજ કારણ સાર બ્રહ્માંડ બને અખંડ કીધા તેમાં લીલા અમારી બ્રહ્માંડ ત્રીજો અખંડ કરવો એ લીલા અતિ ભારી બ્રહ્માંડ 10 દિશ પ્રગટ કીધા અંતરાય નહીં રતિ રેખા સતવાસન અસત જીવ સંવિદ કઈ વિવેક મોહ જ્ઞાન ભરમના કર્મ કાલ નિશુન એ નામ સૌ નિદ્રાટન નિરાકાર નિરગુણ એટલા તે લગે મન પહોંચે બુદ્ધ તુરિયા વચન ઉન્માન આગલ કઈ કરી બલી પડે તે માએ ન સુના સુપના જે જીવ પોતે તે નિંદ્રા ઓલાડે કેમ વાસના નિંદ્રા ઓલંગી અક્ષર પામે એમ એને દૃષ્ટાંતે પ્રિસજો વાસના જીવની વિગતા અસત જીવન બોલે નિંદ્રા નિંદ્રા બોલે વાસના સત જો સુપને કઈ બળી મરતા આયે સ ન આવે પાપ મારતા દેખે જ્યારે આપને ત્યારે દુજે અંગ સાખ્યાત વાસના ઉત્પન્ન અંગથી જીવન નિંદ્રા ઉત્પન્ન એની બીજે કર કોઈ ન મૂકે વાસના જીવનની વિગત વાસના ઉત્પન્ન અંગથી જીવન નિંદ્રા ઉત્પત્તા એની બીજે કર જો કોઈ ન મૂકે વાસના જીવનની વિગત 14 લોક ચારે ગમે સંસતનું સુપન એને દૃષ્ટાંતે પૃછાજો વિચારી વાસના મન અજ્ઞાન સત સ્વરૂપને તમે કહે શું થાય કેમ
તે વિધ કૌ સરભે તમને ઉપનું છે એમાં એકतिर તાની મૂકીએ તેને પત્ર કઈ બેડાએ તે પત્ર સર્વે વેદતા વાર પાવ પલન થાય પણ પેલું પત્ર એક બેજીને તો બીજા લગે જાય તેમાં બ્રહ્માંડ કઈ ઉપજે વાર એટલી પણ ન કહે બાએ તો આ બાર એકની સિંહ કહું એમાં શું થયું સુપન પણ સત ભોમાનું અસતમાં દ્રષ્ટાંત નહીં કોઈ અન્ન જોત બુદ્ધ બને અમકને અમે પ્રગત કીધા પ્રકાશ પૂરું આસ અક્ષરની મારું સુખ દેખાડી સાખ્યાત અજબાનું અખત થયું હવે કિરણ ક્યાંય ન જલાય જોત ચાલી પોતે ઘર બની બુદ્ધ અક્ષર માએ સમાયે હવે જ્યાં થકી જોતા ઉપની જુઓ ત્યનો પ્રકાર અશ્રાતીત મારા ઘર થયા અહીંયા ત્યાં અંબાર જોત સરભે બેલી થઈ કાંઈ આપણને ઘર વાર મારા તે ઘરની બાટડી કેમ કહું મારા આધાર અમે ઘર અહીંથી જોયા અહીં અજબાલું અપાર વિવિધ પેરે એની તાર તમે દેખાડ્યા દરબાર અમે બિલા શકીના ઘરમાં દે બાલાશું અનેક પ્રકાર મુને દીદી નિડર દયા કરી શ્રીદેવ ચંદ્રજી દાતાર બીજા વચન બે બાલાતના આ તે હતનો અજવાસ જે આવ્યું મારે બાલૈયા તેને પૂર્યા મનોરથ સાથ શશી સુર કઈ કોટ કહું તે જોત પ્રકાશ એ વચન સર્વે મોહ લાગે અને મોહન તો નાશ હવે આની જીવાએ કેમ કહું મારા ઘર તનો વિસ્તાર વચન એક પહોંચે નહીં મોહ માએ થયો આકાર મોહ તે જે નથી કાંઈ સત અસંગ સદાય અસત સતને મળે નહીં બાની પહોંચે નહીં એની અદાએ એક અરદ લવ પહોંચે નહીં મારા ઘર તનો દરબાર જોગમાયા લગે વચન ના આવે તે પાર ને બલી પાર હું વચન કહું બીજા બીજાના પણ ક્યાંય ન પામું લાગ મારા ઘર લગે પહોંચે નહીં એક લવાનો કોટાનો કોટમો ભાગ મારા ઘર લગે પહોંચે નહીં એક લવાનો કોટમો ભાગ હું અંગે રંગે અંગના સંગે કરું પોતે પોતાની વાત પોતાના ઘણું શરમાવું તેને ન કહું નિધ સાખ્યાત મારા તે ઘરની બાટડી નથી કયાનો ક્યાંય વિશ્રામ કહું તો જો કોઈ હોય બીજો ગામ નામ ના ઠામ જ્યાં નથી ત્યાં જ્યાં નથી કાંઈ ત્યાં છે કહે બાય એ બને મોહન વચન એ બાની મારી મુને હસાવે તે માટે ઠાઉં છું મુના એટલું પણ હું તો બોલું જો સાથને બર મન ઘેન વચન કહે બીજો ગતે તારું તે દ્વિતીય છે ન શ્રી ઇન્દ્રાવતી શું અતંત રંગે શ્યામ સમાગમ થયો સાત વેલ જગ ભવા શ્રી ઇન્દ્રાવતીને મેં કહ્યો શ્રી ઇન્દ્રાવતીને મેં કહ્યો શ્રી ઇન્દ્રાવતી શું અતંત રંગે શ્યામ સમાગમ થયો સાત બેલ જગ ભવા શ્રી ઇન્દ્રાવતીને મેં કહ્યો શ્રી ઇન્દ્રાવતીને મેં કહ્યો ચૌપાઈ 135 પ્રકરણ 12 ચૌપાઈ 506 કુલ પ્રકરણ 106 चौपाई 2707 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश गुजराती को 12 प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरे सुंदर सास जी, अब आप जागृत होकर देखिए, यह जागनी का ब्रह्मांड हमारे लिए है। तीनों लीलाएं ब्रजराज तथा जागनी एवं चौथी परम धाम की लीला, इन चारों का सुख जागनी के इस ब्रह्मांड में प्राप्त होगा। इस जागनी ब्रह्मांड के सुखों का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर परम धाम का ही प्रेम तथा स्नेह का अनुभव होता है। इस संसार में जितना कहा जा सकता है उसे किंचित प्रकट कर रही हूँ। हे सुंदर सास जी, अब मैं आपको युक्ति पूर्वक जागृत कर भ्रम अज्ञान का पर्दा हटा दूं। आप सबको आनंद पूर्वक
जाग निराश खिलाकर मानव अवतार को सफल बना दूं। अब मैं आपको फूल की पंखुड़ी के जितने दुख भी नहीं दूंगी तथा आपको प्रेम पूर्ण शीतल दृष्टि से देखूंगी। परम धाम के अखंड सुख के सागर में स्नान करके अतः अंतकरण के सब विकारों को धो दूंगी। हे सुंदर साथ जी, मैंने पहले भी कई बार पुकार कर कहा है, फिर भी आपके अंदर के विकार दूर नहीं हुए। तब भी आपने तलवार की तीक्ष्ण धार से समान मेरे खंडनीपूर्ण कठोर वचनों को सहन किया। वे कठोर वचन अब मुझे भी दुखी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ब्रह्म वासनाएं अज्ञानता की इस घोर नींद में अपना मूल घर भूल गई है। हे सुंदर साथ जी, अब मैं तुम्हारे हृदय को ताप दिए क्रोध एवं खंडनी किए बिना ही पिघला दूं और कंचन के समान बना दूं। प्रेम का रंग इस प्रकार चढ़ा दूं कि संसार तथा परम धाम दोनों में तुम्हें धन्य धन्य कर दूं। मैं जानता हूं कि हमारे सुंदर साथ मूल वतन परम धाम से यहाँ विदेश मायावी संसार में आए हैं और उन्होंने अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। इसीलिए इसी संसार में सुंदर साथ को सुख देने की मेरे प्रबल इच्छा है। क्रोध एवं कठोर वचनों द्वारा ब्रह्म सृष्टि जागृत नहीं होंगी। जागृत करने की युक्ति तो अलग ही प्रकार की है। यदि मैं अपनी आत्मा जागृति की युक्ति सुंदर साथ को दिखा दूं तो ब्रह्म वासना कैसे सोई हुई रह पाएंगी। बोध वचन कहते कहते यदि क्रोधित होकर खंडन करे तो भी सुंदर साथ जागृत नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि साक्षात परम धाम की साक्षी देकर आपको आत्मा की पहचान करा दूं। अब सब सुंदर साथ को जागृत कर परम धाम के सुख याद दिला दूं तथा आपस में अपने घर के मूल संबंध की बातें करूं। समस्त सुंदर साथ हमारे पास बैठे और मैं सब प्रकार से परम धाम का वृत्तांत प्रकट करूं। सर्वप्रथम सदगुरु ने मुझे आवेश दिया, फिर दूसरी संपत्ति तारतम ज्ञान प्रदान की। इस प्रकार अज्ञान रूपी निद्रा को निसंदेह निर्मूल कर मुझे प्रत्यक्ष रूप से जागृत परम धाम में अवस्थित कर दिया। अब सुंदर साथ तथा धामधनी के बिना पल मात्र के लिए भी अलग नहीं रह जा सकता। क्षण मात्र का भी वियोग सहन न कर सकना ही आत्मा जागृति समझो। हम परम धाम के हैं। इस प्रकार धाम का अहम भाव जागृत हो गया है। यह आत्मा भाव पूर्ण रूपेण हमारे अंग प्रत्येक अंग में भर गया है। सर्वप्रथम योग माया का प्रकाश रासमंडल में था। वह अत्यंत तेजोमय था, परंतु इस जागनी ब्रह्मांड में आत्मा जागृति की जो लीला होने वाली है उसके प्रकाश का वर्णन नहीं किया जा सकेगा। अब आधे क्षण के लिए भी सुंदर साथ के बिना मुझसे नहीं रहा जा सकता। सुंदर साथ के ऊपर माया की दुखदायी लहरें प्रभाव डाल रही है जो मुझसे सही नहीं जाती। हे सुंदर साथ जी, इस भूमि संसार के अंदर में तुम्हें परम धाम के असीम सुख दूंगी। इन्हें प्राप्त कर तुम हर्ष से झूमने लगोगे तथा आत्मा विभोर होकर नाचने भी लगोगे। आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आप परम धाम की ब्रह्मांगनाओं के समूह है। संसार का खेल देखते देखते आपका मन जिस प्रकार व्याकुल हुआ है, मैं उस दुख की सारी रेखाएं ही छीन कर दूंगी। तुम्हारे मलिन मन तथा बदन को मैं सहन नहीं कर सकती। यद्यपि यह माया दुख सुख का आस्वादन कराएंगी, तथापि मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगी। इस संसार के दुख जब तुम्हें परम धाम के सुख याद दिलाएंगे, तब तुम सब प्रेमानंद में विभोर होकर हंसोगे। इस प्रकार ये दुख ही परम धाम के सुखों का आस्वादन कराएंगे। ये झूठे दुख हमारे आनंद के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं, क्योंकि ये सुंदर साथ जी, यह खेल तो
तुमने ही मांगा है। इस द्वितीय खेल में भी परम धाम के सत्य सुख देकर यहीं पर आत्मा को जागृत कर परम धाम ले चलेंगे। हम सब परम धाम के सहज प्रेमानंद सुखों में मग्न रहते हैं। वहाँ किंचित मात्र भी दुख नहीं था। तुमने परम धाम के अखंड सुखों का स्वाद लेने के लिए दुखदायी खेल मांगा। जब तुमने दुख रूपी मायावी खेल देखने की मांग की, तब श्री राजा जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दुख रूपी खेल कैसे दिखाऊं। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख न दूं तो संसार का यह दुख रूपी खेल कैसे देख पाओगे। तुम्हारे मन में खेल देखने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए यह मायावी खेल उत्पन्न किया। जिस प्रकार हम लोग परम धाम में सदैव रमन करते हैं, उसी प्रकार इस सांसारिक खेल को भी हम परम धाम के सुखों के समान मानती थी। हमारी यह धारणा थी कि हम सब परम धाम में ही खड़े खड़े इस सांसारिक खेल को देखेंगी। वस्तुतः परम धाम की ओर दृष्टि डालेंगे तो वास्तव में दुख कुछ भी नहीं है। तारतम्य के वचनों द्वारा जागृत होकर माया का खेल देखने पर जरा भी दुख नहीं होगा। यदि तुम इस दुखमय संसार में मग्न होकर डूबे रहोगे तो तुम्हें दुख का अनुभव होगा। यदि परम धाम के अखंड सुख का स्मरण करोगे तो यह सांसारिक दुख समाप्त हो जाएगा। माया की ओर से दृष्टि हटाकर परम धाम की ओर देखोगे तो ये सांसारिक दुख कुछ भी नहीं है। परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव इसी संसार में करोगे, तुम्हारे मुख से आनंद की ही बातें निकलेंगी। तुम परम धाम के सुख सागर में मग्न होकर रामते करते थे, वहाँ दुखों का प्रवेश ही नहीं है, इसलिए तुमने दुख की मांग की, उनका थोड़ा सा रंग मात्र दिखाया है। परमात्माएं सुरता द्वारा परम धाम से एक साथ ही इस संसार में आई तथा पुनः एक ही साथ परम धाम में जागृत होंगे। इस द्वितीय खेल को भी सबने एक साथ ही देखा है, परंतु परम धाम में जागृत होने पर जिन्होंने जिस प्रकार की विशेषता देखी वे उसके अनुसार अलग अलग बातें करेंगी। हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारा दुख सहन नहीं कर पाता, तुम इस बात को निश्चित मान लो, किंतु संसार के ये दुख परम धाम के अधिक सुख का अनुभव करवाएंगे। इस प्रकार यह खेल रसदायी आनंददायी सिद्ध होगा। इस संसार में सुंदर साथ को सुख दिलाने का मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। उनके आनंदमयी जागरण रासलीला खेलकर हम सब एक साथ परम धाम में जागृत हो जाएंगे। हे सुंदर साथ जी, अब तुम इस भूमि के सुखों का आनंद प्राप्त करो, क्योंकि तुम सब ने अब तक जो दुख देखे हैं उन्हें मैं सहन नहीं कर सकता। तुम्हें मोहजल की लहरों के थपड़े लगे, उसे अब मैं सहन नहीं कर सकता। मुख से कहकर भी क्यों दुखी करूं, इसीलिए कठोर शब्दों द्वारा तुम्हारा खंडन भी नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें कसनी कष्टदायक स्थिति में भी कैसे रखूं, क्योंकि मैं तुम्हारे मुख की मलिनता को उदासीनता नहीं देख सकता। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ को मैं कठोर वचन भी कैसे कहूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मोहजल से पार करूं, ताकि तुम्हें माया रूपी लहरें तनिक भी स्पर्श न कर पाए और तुम्हें सुख शांति पूर्वक तारतम रूपी सुखपाल में बैठाकर निश्चित रूप से मूल घर परम धाम में पहुंचा दूं। अपने अंग द्वारा तारतम के विभिन्न रूप द्वारा अखंड ज्ञान देकर अनेक प्रकार के प्रेम रस उत्पन्न करा दूं। तारतम ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश सरलता पूर्वक फैलाकर सभी प्रकार के विकारों को दूर कर दूं। सुंदर साथ को मेरे ज्ञान रूपी आवेश दिए बिना परम धाम के मूल संबंध का प्रेम किस प्रकार प्रकट होगा। इसलिए मैं अखंड तारतम ज्ञान रूपी आवेश शक्ति देकर सुंदर साथ को जागृत करता हूँ, ताकि समग्र सुंदर साथ मुझ में अंतर्निहित हो जाए। हम सब सुंदर साथ मिलकर एक साथ तभी चलेंगे
जब मेरे अंग से आवेश रूपी ज्ञान उन्हें दिया जाएगा। इस सच्चे ज्ञान को प्रदान करने पर ही योग माया रचित रास मंडल का जैसा अखंड प्रेम तुम्हें प्रत्यक्ष प्राप्त होगा। अब यदि सुंदर साथ को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त होगा तो मैं स्वयं उस समस्त वेदनाओं को वहन कर लूंगी। मैं हर प्रकार से तुम्हें सुख देने हुए किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दूंगी। अब मैं इस अद्वैत वाणी को एक रस होकर एकात्म भाव से इस प्रकार प्रकट करूंगी जिससे आनंद पूर्वक जागने रास हो सके। मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के सुख प्रदान करूंगी क्योंकि मुझसे परमात्माओं का विरह सहन नहीं होता है। हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हें जागने का सुख प्रदान करके आनंद पूर्वक जागने रास खिलाऊं। जब तक मैं अपना अंग अखंड तारतम ज्ञान तुम्हें प्रदान न करूं तब तक तुम्हें सत्य सुख अखंड प्रेम धाम तथा धनी जी के सुखों की प्राप्ति कैसे होंगी। मैं ब्रह्मात्माओं को अपना ज्ञान देकर उन्हें अपने अंग में समाहित कर दूं, अर्थात हम सब एक ही स्वरूप हो जाएं। मैं प्रेम का ऐसा पक्का रंग लगा दूं कि वह कभी भी न मिटे। अनित्य असत्य माया से तुम्हें अलग कर सत्य परमात्मा के साथ मिलन करा दूं। परात्मा के साथ का तुम्हारा संबंध दृढ़ करवा दूं ताकि प्रलय काल में भी यह अटूट रहे। सदगुरु निजानंद स्वामी ने मुझे अकेले ही जगाया। मेरी आकांक्षा है कि मैं सुंदर साथ के समूह 40 दूतों को जागृत करूं। यह दुखों की भूमि अत्यंत दुखदायी है, उसे धनी जी के अखंड सुख में परिणित कर दूं, अर्थात इसे भी अखंड सुखदायी बना दूं। सब सुंदर साथ को ज्ञान देकर मैं अपने समान बना दूं, तभी मेरा जागृत होना सार्थक माना जाएगा। उन्हें जागृत कर प्रेम धाम का अखंड सुख दूं तथा उनके हृदय में अखंड सुखों के मूल संकेत स्थापित कर दूं। मैंने जिस स्वरूप में पूर्ण आवेश देखा योग माया की निंद्रा है, परंतु पूरी जागृत अवस्था में जो सुख प्राप्त होता है उसे हमारे बिना अन्य कोई नहीं जान सकता। जो ब्रह्मात्माएं जागृत होकर परम धाम में बैठ गई हैं उनको आवेश के विषय में क्या कहें। तारतम का तेज पूर्ण प्रकाश देने वाला है, इसीलिए इसके द्वारा सभी प्रकार के अखंड सुख प्राप्त करें। आवेश को अटकलों द्वारा तौला नहीं जा सकता, वह स्वयं पूर्ण है, परंतु ज्ञान द्वारा जागृत होना विशेष महत्वपूर्ण बात है। यदि विचार पूर्वक देखें तो ज्ञात होगा कि आवेश तथा तारतम दोनों ही जागृत करने के लिए हैं। तारतम ज्ञान को अटकल करने की आवश्यकता नहीं है, इसने सबके लिए मार्ग स्पष्ट कर दिया है। आवेश देकर जागृत करना सदगुरु धनी के हाथ में है, किंतु सदगुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत करना हमारे सामर्थ्य की बात है। सदगुरु धनी ने तारतम ज्ञान के विभिन्न प्रकार के सुख सुंदर साथ के आगे प्रकट किए, फिर इंद्रावती पर दया कर ये समस्त सुख उस अकेले को ही प्रदान किए। धामधनी धन्य है और तारतम ज्ञान भी धन्य है। श्री श्यामा जी के आवेश के साथ तारतम ज्ञान लेकर आने वाली सखी सुंदरबाई भी धन्य है। मैं सुहागिनी इंद्रावती भी धन्य हो गई हूँ, क्योंकि यह तारतम ज्ञान रूपी निधि सदगुरु द्वारा मुझे प्राप्त हुई। मेरे लिए सदगुरु धनी यह अखंड तारतम ज्ञान परम धाम से ले आए। इस रहस्य की जानकारी अन्य किसी को भी नहीं हुई। मैंने तारतम ज्ञान लेकर उसे हृदय में धारण किया, उसको समझा तथा उस पर आचरण करते हुए आत्मा विभोर हो गई और यथार्थ रूप से उसका विस्तार भी किया। यह अखंड वाणी तो सुंदर साथ के बीच में ही कही गई है, परंतु इस पर किसी ने भी पूर्ण रूप से विचार नहीं किया। फिर सदगुरु धनी ने दया कर उसे इस जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती को दिया। सदगुरु धनी परम धाम से विपुल धन, तारतम, प्रेम, आनंद, दया, क्षेमा आदि लेकर आए। वह अखंड धन
विभिन्न प्रकार का है। मैंने उन सब का मूल्यांकन किया तो ज्ञात हुआ कि तारतम्य ज्ञान ही सबका सार सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तारतम्य का बल महत्व कोई नहीं जान सकता है। इसे केवल मूल स्वरूप श्री राधा जी की अर्धांगिनी श्यामा जी के अवतार सदगुरु ही जानते हैं। उनकी अंतर आत्मा चित्त की बातें तारतम्य में अनेक रूप में प्रकट हुई है। सदगुरु धनी कहते थे कि इंद्रावती का स्वरूप साक्षात तारतम्य ज्ञान का ही अवतार है। ब्रह्मधाम की ब्रह्मात्माएं ही इस अद्वैत वाणी पर विचार कर इंद्रावती द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करेंगी। मूल स्वरूप श्री राधा जी तथा सुंदर सार का परिचय करने का सामर्थ्य तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में है। उसकी ज्योति का पूर्ण प्रकाश इंद्रावती के हृदय में है। तारतम्य वाणी तुरंत ही ब्रह्मात्माओं की पहचान कराएंगी। तब इस ब्रह्मवाणी को सुनते ही अज्ञान रूपी निद्रा निश्चित रूप से उड़ जाएंगी। जो ब्रह्मात्माएं इस तारतम्य वाणी का एक शब्द भी सुन लेंगी, वे इस वाणी का संग एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगी। उनका प्रत्येक अंग प्रेम से गल जाएगा तथा वे प्रत्यक्ष रूप से प्रेम के पात्र दिखाई देंगी। इस अखंड वाणी को सुनकर जिसके अंग में प्रेम नहीं सचलता, वो निश्चित रूप से प्रेम धाम की आत्मा नहीं है, उसे जीव के साथ मिला देते हैं। ब्रह्मात्माओं तथा जीव में उतना ही अंतर है जितना सूर्य और रात्रि में होता है। जीव सृष्टि का अंग स्वप्न का है, जबकि ब्रह्म सृष्टि साक्षात श्री राधा जी के अंग स्वरूप है। यदि ब्रह्मात्माओं का तथा जीव का पुनः निरूपण करे तो इन दोनों के मूल स्थान भी अलग अलग दिखाई देंगे। जीव सृष्टि का वास अज्ञान रूपी निद्रा के अंतर्गत है, जबकि ब्रह्मात्माओं का घर अखंड प्रेम धाम में है। अखंड प्रेम धाम कुछ इस प्रकार का है कि वहाँ न तो कोई नया उत्पन्न होता है और न ही पुराना लुप्त होता है। वहाँ वृक्ष के पत्तों में भी घटपट नहीं होती। वहाँ की सभी वस्तुएं सत्य हैं, नित्य हैं, सदा सदैव एक रस हैं। यदि किसी जीव का संग ब्रह्म वासनाओं के साथ हो गया हो तो उस जीव को भी मैं अलग अखंड सुख के वंचित न होने दूंगी। उसे भी वासनाओं के रंग में रंग कर प्रेमानंद सुख दूंगी, क्योंकि वासना तो सत्य स्वरूप धनी का अंग है। श्री सदगुरु धनी ने कहा है कि तारतम्य के तेज का पूर्ण प्रकाश इंद्रावती के अंतःकरण में समाहित हुआ है। मैं इंद्रावती को तारतम्य ज्ञान दिया है और उनके द्वारा सुंदर साठ को दिलवाया है। मैं सदैव इंद्रावती के साथ ही हूँ। सदगुरु ने यह भी कहा कि मैं इंद्रावती के अंतःकरण में हूँ। इंद्रावती मेरे ही अंग स्वरूपा है, इसलिए जो कोई अपना अंग सर्वस्व इंद्रावती को अर्पण करेगा, मैं उसे प्रेम के रंग में प्रेमानंद लीला में रंग दूंगी। तारतम्य ज्ञान तथा जागृत बुद्धि दोनों जहाँ एकत्रित हो जाते हैं, वहाँ श्री राधा जी पहले से ही विराजमान हो जाते हैं। उन्होंने मेरे अंग में प्रकाश फैलाकर सुंदर साथ के कार्य को सिद्ध कर दिया, अर्थात जागने का कार्य पूर्ण कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मात्माओं को सुख दूं तथा उनका सुख मैं ग्रहण करूं और सुंदर साथ को परम धाम के सुख में जागृत करूं। मैंने स्वयं इंद्रावती को यह कार्यभार सौंप कर उसे यह शोभा उपमा दी है। मैंने तुम पर अत्यंत कृपा की है। उसे विवेक रूपी आंखें खोलकर देखो। यदि तुम प्रयास कर नहीं देखोगे तो भी वह स्वयं दिखाई देंगे, क्योंकि अब तारतम्य ज्ञान की ज्योति इस संसार ब्रह्मांड को पार कर आगे निकल गई है, अर्थात परम धाम में पहुंच गई है। मैं तुम्हारे मूल दृष्टि परमात्मा की आंखें खोल दूं, ताकि इस माया की मोह सृष्टि तुम्हारे मार्ग में अवरोध न बने। मैं परम धाम के अखंड सुखों की पहचान करा दूं, जिससे तुम
मूल कर परम धाम को देख सको। तारतम मंत्र का 18,758 चौपाई वाली तारतम सागर तारतम वाणी है। इंद्रावती द्वारा इसका विस्तार हुआ है। इस वाणी के द्वारा हठ भूमि से परे व्याहत तथा उससे परे अक्षर और अक्षरातीत का सार गर्भित मार्ग बताया गया है। अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड किए हुए प्रजा तथा रास दोनों ब्रह्मांड में हम ब्रह्मा आत्माओं की ही लीला ये हैं। जागनी के इस तीसरे ब्रह्मांड को भी अखंड बनाना है, क्योंकि यह जागनी लीला इन दोनों ब्रज तथा रास से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रजरास तथा जागनी इन तीनों लीलाओं का अनुभव हम सब ने काल माया तथा योग माया के ब्रह्मांड में प्रेम पूर्वक किया, परंतु जागनी लीला में चौथी परम धाम की लीला का भी अनुभव होने के कारण यह जागनी लीला श्रेष्ठ मानी गई है। जिस प्रकार स्वप्न के सुखों से अधिक आनंद जागृत के सुखों द्वारा प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रज तथा रास की लीलाओं से अधिक आनंद जागनी लीला में प्राप्त होता है। ब्रजरास तथा जागनी इन तीनों लीलाओं से भी अधिक श्रेष्ठ चौथी परम धाम की लीला का अनुभव भी इसी जागनी लीला में होगा। इसलिए ब्रज तथा रास की लीला से जागनी लीला का सुख श्रेष्ठ माना जाता है। पहले योगमाया निर्मित रास मंडल में जो दृष्टिगोचर हुआ, उसमें उतने ही स्थान पर प्रकाश था। उस प्रकाश में हम रमन करते रहे। उस समय अन्य सब लोकों का विनाश हो गया था। अब 14 लोकों तथा चारों दिशाओं में सुंदर साथ के लिए तारतम ज्ञान का यथा योग्य प्रकाश करूं। उस अखंड तारतम ज्ञान द्वारा सब जीवों को जागृत करके निद्रा अज्ञान रूपी रोग के सदा के लिए मिटा दूं। हम सब सुंदर साथ इस जगत में प्रगट एकत्रित होकर सीधे निज घर प्रेम धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। संसार के प्राणी बरात अज्ञानता का मार्ग छोड़कर सन्मार्ग को ग्रहण करेंगे तथा उन्हें 8 प्रकार की अखंड मुक्ति प्राप्त होंगी। इस प्रकार समग्र सृष्टि एक रस हो जाएंगी। अब तारतम के इन वचनों को मैं किस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रकट करूं, परंतु मुझे तो संसार के सभी प्राणियों को एक रस सन्मार्गगामी बनाना है। वस्तु का ज्ञान कराए बिना अर्थात तारतम ज्ञान द्वारा परमात्मा का अनुभव कराए बिना ये संसारी लोग वशीभूत नहीं होंगे। बहरहाल संसार के प्राणियों को इस प्रकार बस किए बिना अर्थात उन्हें जब तक तारतम ज्ञान द्वारा सन्मार्गगामी एक ही परमात्मा के उपासक न बनाया जाए, तब तक वे अखंड स्थिर किस प्रकार होंगे। इस संसार रूपी खेल को देखने की इच्छा हम ब्रह्मात्माओं ने परम धाम में व्यक्त की थी। वो बीच में ही मैं भंग कैसे होंगी। यह संसार ब्रह्मात्माओं के संसर्ग से अखंड होगा। इस तारतम वाणी का भविष्य में विशेष रूप से प्रचार एवं प्रसार होगा। अभी तो मैंने इस संसार को अखंड बनाने के लिए थोड़ा ही कहा है। इस वाणी के रहस्य को बड़ी युक्ति से मैंने कहा है। भविष्य में इसका विस्तार विवेक पूर्वक होगा। मैंने अपने सुंदर साथ को समयानुसार मात्र संकेत द्वारा ही कहा है, परंतु यह वाणी तो वस्तुतः बहुत ही विशिष्टता है। मैं संसार के सभी जीवों के अंगों में अपनी ज्ञान रूपी बुद्धि का प्रवेश करवाकर अपने जागने की आवेश शक्ति से असत्य जीवों को भी सत्य अखंड कर दूं, ऐसा मेरी आकांक्षा है। मुझे अक्षर ब्रह्म की बुद्धि प्राप्त हुई है। उसी अक्षर की बुद्धि ने योग माया के ब्रह्मांडों को अपने हृदय में ग्रहण किया है। अक्षर की यह बुद्धि इतने दिनों तक अखंड रासलीला के उपरांत हरिद्वार के कुंभ मेले तक अर्थात विक्रम संवत 1735 तक मेरे धनी सदगुरु के चरणों में थी। इसीलिए इतने दिनों तक छिपी रही। अक्षर की बुद्धि रासलीला के बाद आज दिन तक धामधनी के ध्यान में रहकर गुप्त थी और बुद्धावतार के समय की प्रतीक्षा कर रही थी।
ये वचन सुखदेव जी के कथानुसार कहे गए हैं। अब इन शब्दों को मैं गुप्त क्यों रखूं? ब्रज तथा रास मंडल में हम सब खेले, तब अक्षर ब्रह्म की बुद्धि रास मंडल के रंग में रंगी हुई थी। अब वह मेरे अंग में प्रवेश करके यहाँ प्रकट हो गई है। इंद्रावती सदैव धामधनी के साथ ही है। उसके हृदय में सद्गुरु स्वयं विराजमान है, इसलिए उसके हृदय से यह वाणी उत्पन्न हुई है। एक ओर से अक्षर ब्रह्म की बुद्धि तथा दूसरी ओर से तारतम की ज्योति उसके अंतःकरण में प्रवेश कर अवतरित हुई। दोनों स्वरूप तारतम अक्षर की बुद्धि इकट्ठे मिलकर इंद्रावती के हृदय में प्रकट हुए हैं। उन दोनों में एक जागृत ज्ञान तारतम और दूसरे अक्षर की बुद्धि है। इन दोनों का मिलाप सुंदर साथ अपने सामने देखेंगे। अक्षर ब्रह्म की वासनाएं जिन्हें 5 रत्न कहकर संबोधित किया गया है, उनमें से एक सुखदेव जी है, जो हमारे घर परम धाम का पत्र श्रीमद् भागवत लेकर आए, इसलिए वे धन्य है। विष्णु भगवान मन में खेल देखने की इच्छा लेकर नीचे पाताल में शेषाई नारायण के रूप में तथा ऊपर आदि नारायण के रूप में विराजमान है। भगवान विष्णु आदि नारायण तथा शेषाई नारायण को एक ही रूप माना है। उनके साथ धर्म तथा ज्ञान के स्तंभ चारों सनकादिक भी है। भगवान शंकर ने अखंड ब्रजलीला को अपने हृदय में ग्रहण किया। यह ब्रजलीला अक्षर ब्रह्म के चित्त में अंकित होकर अखंड हुई है। संत कबीर अक्षरातीत ब्रह्म तथा ब्रह्म सृष्टि की साक्षी देने के लिए विशाल वचन लेकर आए। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म की ये 5 वासनाएं सुखदेव मुनि, सनकादिक, विष्णु भगवान, भगवान शंकर तथा संत कबीर प्रकट हुई। शेष सब के लिए यह मोहजल भवसागर बांध की दीवार की भांति अवरोधक बन गया। हम जागृति बुद्धि को प्रकाशित कर अपने घर परम धाम जाएंगे। यही बुद्धि वैकुंठ के विष्णु भगवान को अखंड का बोध करवा कर उन्हें जागृत करेंगी। इस प्रकार अक्षर की बुद्धि सारे संसार को शुभ समाचार देंगी। अक्षर की जागृत बुद्धि सबको संपूर्ण समाचार देंगी। भगवान विष्णु तुरंत ही जागृत हो जाएंगे। उनकी आंखें संसार की ओर से हट जाएंगी, अर्थात उनकी रुचि अनित्य माया भी संसार से हटकर अखंड भूमिका परम धाम की ओर लग जाए। उस समय इस चौथे ब्रह्मांड का प्रलय होगा। अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा से नश्वर ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। अक्षर की 5 वासनाएं यहाँ तक पहुंचेंगी। यह अक्षर धाम साक्षात सत्य है। इन 5 वासनाओं के वापस लौटने पर अक्षर की बुद्धि भी खेल की विशेष बातों पर विचार कर उनके साथ में ही वापस जाएंगी। तब अक्षर ब्रह्म आंखें खोलेंगे और उनके मन में असीम आनंद उत्पन्न होगा। तब ये तीनों लीलाएं ब्रजरास तथा जागनी अक्षर के अंतःकरण में स्थिर होंगी। इस प्रकार ये तीनों लीलाएं अखंड होंगी। अक्षर ब्रह्म क्षण मात्र के लिए भी इन लीलाओं को नहीं भूलेंगे। उनके हृदय में तीनों लीलाओं का स्वरूप स्थिर हो जाएगा। मैं इस ब्रह्मांड के बीच पुनः उत्तम श्रेष्ठ स्थान की बात कर रही हूँ। वह स्थान नवोत्तनपुरी है, जहाँ तारतम का उदय तथा विस्तार हुआ। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि 5 वासनाओं को जागृत कर स्वयं में समावेश करेंगी। तब समस्त संसार के प्राणी इसकी साक्षी देंगे। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि मेरे सानिध्य में कुछ इस प्रकार प्रखर हुई और महान बुद्धि महामती कहलाई। सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म को मेरे कारण ही परम धाम के अद्वैत भूमिका का सुख प्राप्त हुआ। मेरे गुण अंग सब जब अजागृत होंगे, अक्षर ब्रह्म के सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य के अक्षी वैष्ठ में, तब वहाँ मेरे चिन्मय स्वरूप की पूजा होंगी। अक्षर की बुद्धि 5 वासनाओं को जागृत करेंगी। विश्व के जीव इस बात के साक्षी बनेंगे।
अक्षर की बुद्धि तारतम्य ज्ञान को लेकर विराट के 14 लोकों में विस्तृत होंगी, अर्थात श्री तारतम्य सागर श्रीमुख वाणी संसार में फैलेंगी। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड परम धाम की लीलाओं का अधिक रंग आनंद चढ़ेगा। इस तारतम्य वाणी में अथाह ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, जिसकी ज्योति कहीं भी समा नहीं पाती। अक्षर ब्रह्म को भी इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश ने प्रकट कर दिया है, जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में अनेकों ब्रह्मांड एक पल के चौथाई समय में उत्पन्न करते हैं। उन सब को मैंने तारतम्य ज्ञान के प्रकाश द्वारा देख लिया है। अक्षर ब्रह्म की यह लीला अत्यंत सुंदर है। उनके दृष्टि मात्र से अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है। वे सर्वदा नई नई बाल लीलाएं करते हैं तथा उनकी इच्छा भी अखंड होती है। यह मंडल अक्षरधाम अखंड है। अक्षर ब्रह्म तथा उनके धाम का वैभव तारतम्य ज्ञान के द्वारा इसी जागनी के ब्रह्मांड से सीधा देखा जा सकता है। अक्षर ब्रह्म के द्वारा महतत्व की उत्पत्ति हुई, जिसे शून्य निराकार कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्म सृष्टि के लिए पल मात्र में ही इस मायावी खेल की रचना कर दी। काल माया ब्रज तथा योग माया रास के दोनों ब्रह्मांडों को अक्षर ब्रह्म ने अपने अंतःकरण में अखंड कर लिया है। इन दोनों ब्रह्मांडों में हमारी ब्रह्मात्माओं की लीलाएं हुई है। अब जागनी के तीसरे ब्रह्मांड को उनके अंतःकरण में अखंड करना है। जागनी की यह लीला अत्यंत महत्वपूर्ण सारगर्भित है। मैंने अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित ब्रह्मांड की 10 दिशाओं को तारतम्य ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया है, प्रत्यक्ष कर दिया। इसमें रति भर का भी अंतर नहीं है। ब्रह्म वासना सत्य नित्य है तथा जीव असत्य अनित्य है। मैंने इसका विवेक के साथ वर्णन किया है। मोह अज्ञान भ्रम कर्म काल तथा शून्य ये सब निद्रा के ही नाम है। इन्हें निराकार निर्गुण कहते हैं। यहीं तक मन बुद्धि चित्ता तथा वाणी पहुंचती है। ज्ञानी जन उससे आगे का वर्णन अनुमान द्वारा करते हैं और पुनः शून्य निराकार में आकर रुक जाते हैं। जो जीव सांसारिक प्राणी स्वयं स्वप्न द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, वे इस अज्ञान रूपी निद्रा को किस प्रकार लांघ सकते हैं। परमात्मा निद्रा का परित्याग करके शून्य निराकार को पार कर जाती है। इस प्रकार अखंड अविनाशी धाम को प्राप्त करती है। हे सुंदर साथ जी, इस दृष्टांत के माध्यम से आप ब्रह्मात्माओं तथा जीव की वास्तविकता समझ लें। असत्य मायावी जीव निद्रा स्वरूप शून्य निराकार को लांघ नहीं सकते और सत्य ब्रह्मात्माएं निद्रा को लांघ कर उस पार चली जाती है। पुनः दृष्टांत देकर कहते हैं, स्वप्न देखने वाला स्वप्न में कई लोगों को झगड़ते हुए देखता है। उस समय स्वयं उसे किसी भी प्रकार के भय का अनुभव नहीं होता, परंतु जब उसी स्वप्न में स्वयं उसे ही कोई मारने पीटने लगे तो शरीर कंपायमान होकर डर कर वह स्वप्न से जागृत हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मात्माएं स्वप्न के संसार का खेल देखकर परम धाम में जागृत होंगी तथा अन्य जीवों का यहीं पर नाश होगा। परमात्माएं श्री राधा जी के अंगों से उत्पन्न हुई है। जीव सृष्टि निद्रा द्वारा उत्पन्न हुई है। इस प्रकार दोनों आत्माएं अपना अपना घर उद्गम स्थान नहीं छोड़ती है। ब्रह्मात्माओं तथा जीव की यही वास्तविकता है। हे सुंदर साथ जी, 14 लोक चारों दिशाओं में जो कुछ भी है वो सब सत्स्वरूप अक्षर के स्वप्न का विस्तार है। अपने मन में विचार कर इसी दृष्टांत से सब समझ ले। आप कहेंगे कि सत्स्वरूप अक्षर को भी अज्ञान रूपी निद्रा ने कैसे प्रभावित किया। जिस प्रकार अज्ञान रूपी निद्रा की उत्पत्ति हुई है उसे मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। पेट के पट्टों को एकत्रित करके
यदि उन पर तीर फेंका जाए तो एक साथ कई पत्ते बीत जाते हैं। उन सब पत्तों का बीजने में एक पल के चौथाई भाग का भी समय नहीं लगता, परंतु बीजते समय प्रथम तो एक पत्ते को बीजकर बाण दूसरे पत्ते तक पहुंचता है। एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतने समय में तो अक्षर ब्रह्म द्वारा कई ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। यह तो एक दृष्टांत है, वस्तुतः इतना समय भी नहीं कहा जा सकता। एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक तीर के पहुंचने के समय के विषय में मैं क्या कहूँ। इतने समय में अक्षर को कौन सा स्वप्न आया होगा, परंतु असत्य भूमि इस झूठे संसार में सत्य भूमि को समझाने के लिए अन्य कोई दृष्टांत भी तो नहीं है। तारतम की ज्योति तथा अक्षर की बुद्धि दोनों ही मेरे अंतःकरण में विराजमान है। इनके द्वारा मैंने अक्षरधाम तथा परमधाम की लीलाओं का प्रकाश प्रकट किया। अब अक्षर की मनोकामना को भी साक्षात परमधाम के अखंड निज सुख दिखाकर पूर्ण कर दूं। अखंड तारतम ज्ञान का प्रकाश उदय हो चुका है। अब इस दिव्य ज्ञान की किरणें कहीं भी समा नहीं पा रही है। अब यह तारतम की ज्योति स्वयं मूलधार परमधाम की ओर चली तथा अक्षर की बुद्धि अक्षर में समा गई। अब यह तारतम की ज्योति जहाँ से उत्पन्न हुई है उसका विवरण देखो। हमारी ब्रह्मात्माओं का मूल घर अक्षरातीत परमधाम ही है, जहाँ अखंड ज्योति का भंडार है। यह संपूर्ण ज्योति मूल घर परमधाम में एकत्रित हो गई। यह हमारे घर परमधाम की बातें हैं। हे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं उनका वर्णन कैसे करूं। हमें इस संसार में बैठकर यहीं से तारतम की ज्योति द्वारा अपने मूल घर परमधाम को देख लिया है। यहाँ तारतम का असीम प्रकाश है। इस प्रकार तारतम ज्ञान ने विभिन्न प्रकार से धामधनी का दरबार दिखा दिया। हम सब ने निज धाम में श्री राजा जी के साथ अनेक प्रकार से आनंद विलास किया। वह सब निधि अनुभव तारतम के दाता सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे दयापूर्वक दी है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा दिए गए तारतम ज्ञान रूपी बीज वचन का प्रकाश ही यह संपूर्ण वाणी है। उपरोक्त मूल वचन रूपी बीज प्रियतम सदगुरु ने मेरे हृदय रूपी भूमि में बोए और उससे समस्त सुंदर साथ की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। यदि मैं धामधनी के तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश को करोड़ों सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की उपमा दूं, फिर भी वे तारतम के प्रकाश के सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि उपमा के ये सब वचन महतत्व तक ही पहुंचते हैं और महतत्व तो नाशवानी ही है। अब मैं इस मायावी निर्बल जीवा द्वारा अखंड घर परमधाम के विस्तार का वर्णन किस प्रकार करूं, क्योंकि इस वाणी का एक भी शब्द अखंड घर परमधाम तक नहीं पहुंचता है। हमारा यह आकार शरीर ही मोह के अंतर्गत है। मोह तो कुछ भी नहीं है, अर्थात वह नाशवान है। वह सदैव सत्य के असंग अलग ही है। इसलिए असत्य वस्तु सत्य तक कभी भी नहीं पहुंचती। इस प्रकार असत्य की वाणी इस झूठे संसार के शब्द भी अखंड परमधाम तक नहीं पहुंच पाती। इस संसार के झूठे शब्दों का आधा अक्षर भी मेरे अखंड घर परमधाम तक नहीं पहुंच पाता। जब संसार की बैखरी वाणी योग माया तक भी नहीं पहुंच सकती, अर्थात योग माया रचित रासमंडल रासलीला का वर्णन भी ठीक से नहीं कर पाती है, तो उससे आगे अक्षरधाम और उसके भी आगे परमधाम तक कैसे पहुंच पाएंगी। फिर भी मैं अभिन्न प्रकार के वचन कहती हूँ, परंतु परमधाम के उपमा के लिए उपयुक्त शब्द ही नहीं मिल रहा है। मेरे घर परमधाम की उपमा के लिए यहाँ के शब्द का करोड़ोंवा भाग भी परमधाम की शोभा का वर्णन नहीं कर पाता। सदगुरु धनी कहते थे कि मैं मेरी अंगना इंद्रावती के साथ समाहित हुआ हूँ। हम परस्पर अपने अंतरंग की बात करते हैं, इसलिए मुझे
कहने में लज्जा प्रतीत होती है, अतः दुनिया के सामने इस निधि को प्रकट नहीं करती। हमारे घर परम धाम के बातें कहने के लिए कोई योग्य ठिकाना पात्र ही नहीं है। ब्रह्मात्माओं के सिवा अन्य कोई हो तभी तो कहा जाए। संसारी जीवों का तो कोई नाम, गांव या स्थान ही नहीं है, अर्थात वे तो अस्तित्व विहीन तथा नाशवान है। यहाँ कुछ भी नहीं है, वह संसार में परमात्मा है ऐसा कहा जाता है, परंतु ये दोनों ब्रह्म है अथवा नहीं है। मोह के वचन है, अतः मेरी यह वाणी मुझे ही हंसा रही है। इसलिए अंदर परम धाम का ज्ञान होने पर भी बाहर कहने के लिए मैं मौन होती हूँ। इतने वचन भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि सुंदरता पर माया के अज्ञानता भ्रम का नशा चढ़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ इन वचनों को ठीक से विधिवत कहकर माया के द्वैत भाव को मिटा दूं। इंद्रावती के अंतरात्मा में धामधनी का समागम हो गया है। सदगुरु कहते हैं कि समस्त ब्रह्म सृष्टि को एक साथ जागृत करने के लिए मैंने इंद्रावती से कहा है, अर्थात जागनी का उत्तरदायित्व तो इंद्रावती को सौंपा है। श्री इंद्रावती की अंतरात्मा में धामधनी का समागम हो गया है। सदगुरु कहते हैं कि समस्त ब्रह्म सृष्टि को एक साथ जागृत करने के लिए मैंने इंद्रावती से कहा है, अर्थात जागनी का उत्तरदायित्व तो श्री इंद्रावती को सौंपा है, अर्थात जागनी का उत्तरदायित्व तो श्री इंद्रावती को सौंपा है। चौपाई 135, प्रकरण 12, चौपाई 506, कुल प्रकरण 106, चौपाई 2707 इति ग्रंथ कलश गुजराती किताब तोरेट संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजश्याम 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 काये, राजश्याम 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 काये, जय विधि रखे श्याम ते विधिराये, जय विधि रखे श्याम ते विधिराये, राजश्याम 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 काये, जय विधि रखे श्याम ते विधिराये, जय विधि रखे श्याम ते विधिराये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। झूठे झूठ पूजत ढूंढे अव्वल आखिर लग, तो हक ना काहूं पायत। कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब तुम, कया उतरते हक ने
बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री